Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study community development program. So let's start the lecture and understand. See, at the time of independence, more than 75% population of India lived in rural areas, right? So more than 75% population of India lived in rural areas. And at the time of independence, there were many problems in rural area. The first is lack of education facilities, then lack of health facilities, right? Lack of employment facilities, fourth lack of activities related to secondary sector or industrial. So lack of industrial activities, right? Industrial activities, or we can say that lack of activities related to secondary sector. Also lack of activities related to service sector, and because of the lack of activities related to industries or service sector, there were lack of employment opportunities, right? Also there were lack of communication, right? Communication facilities. And because of these things, right, because of these aspect, there were many problems in rural India, or we can say that there was a lack of development, right? There was a lack of development in India. And if our country had to achieve economic development and economic growth, then definitely these rural areas, right, these rural areas must have been developed, right? And for the development of these rural areas, right, for the development of the rural areas, there must be different, right, there must be different programs or different schemes. For an example, there must be different policy or scheme related to education, related to health, related to employment, so that the education could be improved, health facilities could be improved. So there must be different policies and schemes, and also there must be coordination, right? There must be coordination between these schemes and programs, so that a larger base, or we can say that large people could take the advantage of these schemes and programs. Third thing is that financial assistance, right? Financial assistance. So for the development of rural areas, government definitely can launch many schemes or many programs. Government can provide fund facilities or financial facilities as well. But it is not necessary that after having so much programs or schemes, and after having so much amount of finance, right, rural development can take place, right? Rural development can take place only when there is change in attitude, right? Change in attitude. Also public participation, increase in public participation, right? क्योंकि participation, public participation जितना ज़्यादा होगा, right, people would come to know about the schemes and policies, and definitely they will take the advantage of that. After that, there must be a system, right? There must be a system. Through this system ये सारे के सारे जो कार्य हैं किए जा सके, and the name of the system is community development program, right? So in short we can say that community development program एक ऐसा system है, राइट? सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं या जो डिफरेंट स्कीम है उनमें कोऑर्डिनेशन किया जाता है। साथ ही साथ इन डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन जो है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाता है, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों के एटीट्यूड में चेंज आ सके, और ग्रामीण क्षेत्रों के एटीट्यूड में जैसे ही चेंज आएगा तो उससे पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, राइट?
और उससे जो डिफरेंट स्कीम्स हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल पीपल है वो उसका एडवांटेज ले पाएंगे और इससे जो रूरल डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो एक तरीके से जो सोसाइटी है हम कह सकते हैं कि रूरल सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, और रूरल सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो उससे इंडिया का भी क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, राइट। और इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत स्वतंत्रता के समय पर हुई थी, राइट। और ये जो प्रोग्राम है वो इस समय पे मैच्योर जो है स्टेज पर है, राइट। तो हम इस तरीके से जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को समझ चुके हैं, राइट। यदि ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है तो सिंपली वी कैन डिफाइन, राइट। कम्युनिटी डेवलपमेंट हम जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रिफर्स टू अ मेथड, right? Community development program refers to a method by which efforts are made for the overall development of society or rural area by establishing coordination between the stakeholders of the rural society, economic resources, nature of leadership and पब्लिक पार्टिसिपेशन, राइट। तो यहाँ पर रूरल सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, राइट, और जो लीडरशिप है और पब्लिक पार्टिसिपेशन में कोऑर्डिनेशन किया जाता है ताकि रूरल सोसाइटी का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में जो इनिशिएटिव्स है वो कम्युनिटी, राइट, initiatives is taken by community to achieve the goal and it is necessary to get the public cooperation। देखिए रूरल एरियाज में कई सेक्टर में कई प्रकार की समस्या है, इसीलिए जो इनिशिएटिव्स है, राइट, थ्रू द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय द कम्युनिटी, राइट, सो दैट जो जितने भी गोल हैं वो अचीव किए जा सकें और जो पब्लिक कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ा सके। इसके साथ ही द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नॉट टू बी लिमिटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास से ये संबंधित नहीं है, बल्कि रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, राइट। तो यहां पर जो वर्ड है कम्युनिटी, इस वर्ड को, ये जो कम्युनिटी वर्ड है वो इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर किसी एक क्लास की एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी का जो रूरल सोसाइटी है, राइट, जो डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी वुड बी फोकस्ड एंड जो इंटायर कम्युनिटी है दैट वुड बी डेवलप्ड, राइट। अब अगर हम देखें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से या थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कोऑर्डिनेशन और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स इन इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज, बट क्या वो सभी प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो हैं वो उससे लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जब तक कि उनमें कोऑर्डिनेशन ना हो और जब तक कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, राइट। सो इसीलिए जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स includes various types of efforts made by the government such as development of irrigation, right, having a good market economy, development of forest, education, health, employment, rural development. Also it includes the cooperation, right, cooperation and coordination between different schemes and programs, right, and it also increases the public participation, right. So this is community development program. Right, now we will see the concept of community development program. See, community development program is the process of developing actively and sustainably based on social justice and mutual respect. तो किसी भी ग्रामीण एरिया का डेवलपमेंट हो या सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, राइट, उसमें सोशल जस्टिस भी होना चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, राइट। सो CD. So community development program is the process of developing actively and sustainably based on social justice and mutual respect. And the community development is not just a plan,
बट इट इज़ एन आइडियोलॉजी एंड फ्रेमवर्क। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक आइडियोलॉजी है और एक क्या है, फ्रेमवर्क है, राइट। आइडियोलॉजी के माध्यम से जो इंडिविजुअल्स हैं, राइट, उनको अवेयर किया जाएगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उनको अवेयर किया जाएगा, राइट। सो एज एन आइडियोलॉजी it is a program that makes individuals aware of their responsibilities, or as a framework it explains the interrelationship of different sectors and their mutual influences, right. So this is the concept of community development, right. और इतना जो है हम समझ चुके हैं। अब आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और थ्रू दीज डेफिनेशंस, राइट, वी वुड अंडरस्टैंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इटसेल्फ। और सेकेंड, अगर हमको कोई 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन लिखना है तो हम किसी भी एक जो डेफिनेशन है उसके द्वारा हम हमारे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो थ्रू दीज डेफिनेशंस वी विल अंडरस्टैंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। सो द फर्स्ट इज A.R. Desai, right. According to A.R. Desai, community development program is the method by which 5-year plan initiates a process of transforming the social and economic life of the village, right. तो यहाँ पर A.R. देसाई ने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको जो 5-year प्लान है उसके इनिशिएटिव से रिलेट किया है, right. So CDP is the method by which the 5-year plans initiates a process of transforming the social and economic life of the village. Now we will see according to Planning Commission. So according to Planning Commission, community development program is a self-funded, self-sufficient program organized and implemented by the villagers themselves. The government only provides technical guidance and financial असिस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन एम्फेसाइज करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेल्फ फंडेड के लिए और सेल्फ सफिशिएंट के लिए। वही हम जो है यूनाइटेड नेशंस के अनुसार देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस इन विच द एफर्ट्स ऑफ द पीपल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट and for the social and cultural conditions of the communities, for the connecting the communities with the national life and for the national development are combined with the state authorities, right. Now according to SKD, community planning is a well throughout plan to manage the affairs of the community on a regular basis, right. Now we will see अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी, राइट। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले तो जो है कम्युनिटी को डिफाइन किया है और फिर उसके बाद में उसके महत्व को बताया। सो अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी, फॉर द पास्ट डिकेड्स द टर्म कम्युनिटी हैज बीन यूज्ड टू रेफर रिलीजियस और कास्ट ग्रुप and to a lesser extent for an economic group that does not live in the same area. But with the inauguration of community development programs, the term is to be used for the entire community, right, which is above religion, caste and economic inequalities, right. फिर जो है बलवंत राय मेहता समिति कहती है, it is a program in which a special emphasis would be given on the fact that development of a place is necessary for the people living there, right. So these were the definitions of community development program, right. Now we will see the objective of community development program. See, so we have studied the community development program, और जो community development के प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव भी क्या है, डिफरेंट है, राइट. सो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 5 मार्कर जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CDP, राइट. सो नाउ वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CDP. अब मैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको शॉर्ट फॉर्म में CDP ही कहूँगा, राइट. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ CDP, फर्स्ट
अकॉर्डिंग टू एस.सी. दुबे के अनुसार, राइट. सो अकॉर्डिंग टू एस.सी. दुबे द ऑब्जेक्टिव ऑफ CDP इज to try to increase the country's agricultural product in abundance. Second, to increase the facilities of communication. Third, to spread education. Fourth, to improve the conditions of rural health and sanitation, and to initiate the process of cultural change systematically to transform the social and economic life in the villages. राइट. तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बताए थे डॉक्टर एस.सी. दुबे ने. नाउ अकॉर्डिंग टू A.R. देसाई, A.R. देसाई ने जो CDP के जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो सबसे अलग बताए हैं, क्योंकि A.R. देसाई ने यहाँ पर सोशियोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल चेंज है, साइकोलॉजिकल चेंज को ही CDP का ऑब्जेक्टिव माना है. राइट. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर A.R. देसाई, राइट, the objective of CDP is to create a psychological change in the villages, right? Create a psychological change in the villages. At the same time, keeping in the mind a new aspiration, motivations, techniques and beliefs of the villagers, huge reserve of the manpower have to be invested in the economic development of the country. तो A.R. देसाई ने यहाँ पर अगर हम देखें तो एस.सी. दुबे ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सर्विसेज हैं, राइट, एजुकेशन, हेल्थ, उसके अपलिफ्टमेंट को ही CDP माना है. तो A.R. देसाई ने जो CDP का ऑब्जेक्टिव है वो साइकोलॉजिकल चेंज को माना है, ताकि जो ह्यूज मैन पावर है उसको देश के डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकें. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, सो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में डैग हैमरशोल्ड ने जो है CDP के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट CDP is not only, right, CDP is not only to provide food, clothing, housing, health, sanitation facilities to villagers, but more importantly to create a change in the attitudes and thoughts of the villages, right. तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है उसमें भी जो विलेजर्स के एटीट्यूड और थॉट्स को इम्प्रूव करने के जो है फोकस किया गया है. राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू श्याम चंद्र दुबे, तो श्याम चंद्र दुबे ने डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को CDP का ऑब्जेक्टिव माना है, क्योंकि यदि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो उससे रूरल डेवलपमेंट भी आसानी से हो जाएगा. राइट. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, इससे इनकम बढ़ेगी तो रूरल डेवलपमेंट होगा, और एट लास्ट अगर हम देखें तो उससे सोसाइटी का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. तो इस तरीके से हमने देखा था यहाँ पर एस.सी. दुबे के अनुसार, राइट, अकॉर्डिंग टू एस.सी. दुबे, राइट, रूरल एरियाज में ये जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, वो CDP का ऑब्जेक्टिव है. तो वहीं अगर हम देखें तो A.R. देसाई के अनुसार जो साइकोलॉजिकल चेंज है, साइकोलॉजिकल चेंज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ CDP. तो वहीं यूनाइटेड नेशंस एम्फेसाइज बोथ, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट में, राइट, इन फैसिलिटी के साथ साथ जो एटीट्यूड एंड थॉट्स ऑफ विलेजर्स है उसके चेंज को भी CDP का ऑब्जेक्टिव माना है. तो वहीं श्याम चंद्र दुबे ने जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसको CDP का ऑब्जेक्टिव माना है. राइट. Now we will see the objective of CDP according to Ministry of Community Development, Government of India. Right? तो यदि 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इन 11 मार्कर क्वेश्चन में हम सबसे पहले डॉक्टर एस.सी. दुबे, फिर A.R. देसाई, राइट, फिर यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट और श्याम चरण दुबे को जो है नोट कर सकते. परंतु यदि 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो इट वुड बी राइट कि हम यहाँ पर जो है एक एक लाइन में इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको लिखें, और ओवरऑल जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसको हम लिखेंगे. राइट. तो वहाँ पर 4 लाइन में चारों ऑब्जेक्टिव लिखते हुए हम जो है सीधा 5 मार्कर में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने CDP के जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो हम लिख कर आ जाएंगे. राइट. तो यहाँ पर
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार CDP के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ द विलेज पीपल। सेकेंड, डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप इन द विलेजेस, क्योंकि अगर इफेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी तो जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका फॉर्मुलेशन भी उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। देन थर्ड, टू मेक द इंटायर रूरल पीपल सेल्फ रिलायंट एंड प्रोग्रेसिव। फोर्थ, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन होगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे इनकम बढ़ेगी। फिफ्थ, रूरल वुमेन, और जो रूरल वुमेन है और जो रूरल फैमिलीज हैं, राइट, उनकी कंडीशन को अपलिफ्ट करना। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर पर्सनैलिटी हो जाएगा। देन जो रूरल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना, साथ ही साथ उसको और बेहतर लेवल पर पहुंचाना, राइट। टेक केयर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, और जो सैनिटेशन है उसको भी इम्प्रूव करना, साथ ही साथ टू मेक रूरल पीपल अ गुड सिटीजन बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, टू डेवलप द थिंकिंग एटीट्यूड एंड एक्ट आउटसाइड द नैरो सर्कल ऑफ द रूरल यूथ, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो जो रूरल पीपल होते हैं वो यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस माइंड सेट को या इस एटीट्यूड को चेंज करना। साथ ही साथ टू प्रोवाइड, या हम कह सकते हैं कि टू इनकरेज कॉटेज इंडस्ट्री, ताकि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ पर परफॉर्म हो सकें। साथ ही साथ जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनको भी इनकरेज करना, ताकि वो जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स में अपना कंट्रीब्यूट दे सके, राइट। नाउ वी विल सी हाउ द जो CDP है वो हमारे इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस से ही जो है शुरू हो गई थी, राइट। सो हम ये पूछ सकते हैं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ द CDP इवॉल्व्ड इन इंडिया। यह पूछा जा सकता है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये भारत में किस तरीके से विकसित हुआ, या हाउ वाज द CDP प्रोग्राम डेवलप्ड इन इंडिया। सो वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। सो इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि रूरल सोसाइटी और रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए जो सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं रूरल सोसाइटीज़ की वो दूर होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पर वेलफेयर स्टेट की जो एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया है, अब अगर हम देखें तो बिफोर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, राइट, इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारे इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कई लोगों ने एफर्ट्स किए थे। सो वी विल सी कम्युनिटी डेवलपमेंट, और यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी 5 मार्कर में जो है अपने आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट वर द एफर्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, अब देखिए स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस प्रोग्राम को शुरुआत किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, राइट। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज डन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था? इन 1920 में किया था, राइट, इन द फॉर्म ऑफ श्री निकेतन प्रोजेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि श्री निकेतन प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट, which is based on community development और रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद में 1920s में ही जो है गुड़गांव प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, राइट। सो गुड़गांव प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन 1920 बाय F. अली ब्रायन। सो F. अली ब्रायन ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, राइट। उसके बाद में मैटेंडम, राइट। सो जो मार्टेंडम प्रोजेक्ट था, मार्टेंडम प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड, राइट, इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट बाय यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इन 1921। तो जो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन था उन्होंने 1921 में मार्टेंडम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। आफ्टर दैट BT बड़ौदा प्रोजेक्ट
एस्टेब्लिश हुआ। तो जो बीटी बड़ौदा प्रोजेक्ट था, बीटी बड़ौदा प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय कृष्णामाचारी इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर स्पेंसर हैच हो जाएगा। उसके बाद में सेवाग्राम प्रोजेक्ट, सो सेवाग्राम प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय महात्मा गांधी एट वर्धा इन 1936, और ये एक बार प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। तो महात्मा गांधी ने जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, उसको वर्धा में इम्प्लीमेंट किया था, 1936 में इम्प्लीमेंट किया था। आफ्टर दैट जो नीलोखेरी प्रोजेक्ट था वो SKD के द्वारा 1948 में जो है लॉन्च किया गया था। राइट, नाउ वी विल सी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिपेंडेंस इंडिया। अब इंडिपेंडेंस इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अ पायलट स्कीम और पायलट प्रोजेक्ट, राइट, अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्टेड और इम्प्लीमेंटेड इन 1948 in Etawah, Gorakhpur district of Uttar Pradesh. So first pilot project or scheme was implemented in 1948 in Etawah, right, Gorakhpur district of Uttar Pradesh. और ये जो पायलट स्कीम था, ये जो पायलट प्रोजेक्ट था, ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। और आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस पायलट स्कीम एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इन जनवरी 1952, और इस एग्रीमेंट के माध्यम से ही फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज एक्सेप्टेड बाय फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका फॉर द ओवरऑल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया। तो जो 1952 में इंडिया और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था, उसके माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, राइट। और उसके बाद में जब ये प्रोग्राम और ज़्यादा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, राइट, तो इसका नाम चेंज किया गया, राइट। द नेम ऑफ दिस पायलट स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट was named as कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये नाम कब दिया गया था, 2 अक्टूबर को दिया गया था, राइट। सो द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्क ऑन दिस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय एस्टेब्लिशिंग 55 डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो 55 जो डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल हम एक तरीके से कह सकते हैं विकासखंड, तो 55 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। और 2 अक्टूबर से ही इस पायलट स्कीम को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जो है हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा रूरल डेवलपमेंट को जो है एम्फेसाइज किया था। ओके, सो नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फीचर्स क्या क्या हैं उनको हम समझेंगे यहाँ पर। सो देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फीचर्स के अगर हम देखें, सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का या रूरल एरियाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से जो जितनी भी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। उस कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, उस कोऑर्डिनेशन से इफेक्टिव क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। साथ ही साथ जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सेल्फ रिलायंस है उसको भी जो है फोकस किया जाएगा, ताकि जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो पाए और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके माध्यम से पूरी जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो हो पाए। सबसे पहला फीचर तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट्स हो जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट्स कई डिपार्टमेंट्स ने कई प्रकार की जो है स्कीम को लॉन्च किया था। फॉर एन एग्जाम्पल, डिफरेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, इंडस्ट्री, एजुकेशन, पंचायती राज, हेल्थ एंड पब्लिक, राइट। जो पब्लिक वर्क्स है उसके लिए कई स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए गई थी, बट उनमें ना तो यूनिफॉर्मिटी थी, साथ ही साथ उनमें कोई भी जो है कोऑपरेशन भी नहीं था। इसीलिए टू एस्टैब्लिश्ड कोऑर्डिनेशन, राइट, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जो CDP है, राइट, इसने बहुत अच्छा काम किया है।
दूसरा क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एट क्या हो जाएगा, रीजनल लेवल हो जाएगा, राइट। अगर किसी भी एक एरिया को, राइट, किसी भी एक एरिया में हमें अच्छी ग्रोथ हासिल करनी है तो वहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, ताकि वहाँ के जो जितनी भी, राइट, एक यूनिट के तौर पर उसको सेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, ताकि जितनी भी जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो सके और उस सेंट्रलाइजेशन एजेंसी के माध्यम से जो है कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो सके। तीसरा क्या हो जाएगा, पब्लिक कोऑपरेशन हो जाएगा, राइट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब केवल इतना नहीं है कि सरकार जो है फंड अरेंज करेगी और मैनी स्कीम्स को लॉन्च करेगी, बल्कि लोकल लेवल पर जो है पब्लिक कोऑपरेशन को भी इंक्रीज करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ कोई भी स्कीम हो, जो लोग हैं जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट, तब तक कोई भी स्कीम या प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि जो जेन्यून बेनिफिशरीज ऑफ स्कीम्स हैं, राइट, जो जेन्यून बेनिफिशरीज ऑफ किसी जेन्यून बेनिफिशरीज ऑफ कोई प्रोग्राम है या स्कीम है, वही बता सकते हैं कि व्हाट आर द लूप होल्स ऑफ दैट स्कीम और प्रोग्राम, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, राइट। तो जैसे जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा किसी भी योजना में, किसी भी पॉलिसी में, जो भी लूप होल्स हैं, राइट, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उससे ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलाइज हो पाएंगी, राइट। उनका एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा और एक बेहतर प्लान तैयार होगा, राइट। और जिसकी बदौलत से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अस्तित्व में आ पाएगा। फोर्थ, इंक्लूजन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्या हो जाएगा, सोशल सोसाइटी हो जाएगा, राइट। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, राइट, किसी एक विशेष क्लास के लिए नहीं है और किसी एक विशेष प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में भी नहीं है। दरअसल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मोरल, राइट, कम्युनिटी के हर एक एस्पेक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो है गोल तैयार किया जाता है और ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम में जो है वो कार्य किया जाता है, राइट। नाउ वी विल स्टडी द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन कैसे होता है, राइट। ये एग्जाम में 11 मार्कर में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। हाउ इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड और ऑपरेटेड, राइट। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, राइट, और इसका ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है, क्लियरली। सो सी आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, दिस वाज एसोसिएटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो जो CDP था वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से ही क्या था, रिलेटेड था। परंतु कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए मच रिक्वायर्ड है, इसीलिए, राइट, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये क्रिएट की गई, राइट। तो शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से ही संबंधित था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर इसके लिए अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री जो है क्रिएट की गई थी। परंतु अगर हम देखें वर्तमान समय में तो एट प्रेजेंट दिस CDP इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर ही जो CDP प्रोग्राम है ये हमारे देश में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो ऑपरेशन है उसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो इसके ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं और इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, राइट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑपरेटेड एट नेशनल लेवल और सेंट्रल लेवल, राइट। तो सेंट्रल लेवल से इसको ऑपरेट किया जाता है, फिर स्टेट लेवल हो जाएगा, राइट। और इसमें जो सबसे अधिक भूमिका होती है या इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है पंचायती राज का, और पंचायती राज में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन है और इन लेवल पर जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। अब हम जो है एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, राइट। सबसे पहला हो जाएगा सेंट्रल लेवल। तो अभी हमने समझा था एट प्रेजेंट जो CDP है, राइट, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इम्प्लीमेंट के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या इससे एफिलेटेड है। तो CDP एट सेंट्रल लेवल इज एफिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ ही फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पॉलिसी मेकिंग के लिए और उनके प्रोग्रेस के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए देयर इज अ स्पेशल एडवाइजरी कमेटी। तो जो एक स्पेशल एडवाइजरी कमेटी है वही CDP के लिए प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है और पॉलिसी मेकिंग का कार्य करती है। और ये जो स्पेशल एडवाइजरी कमेटी है इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं, देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन भी इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन जो है इसके मेंबर होते हैं और इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? नाउ वी विल सी स्टेट लेवल। सी जो रूरल डेवलपमेंट है, राइट, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दरअसल वो किसके पास में है? स्टेट के पास में है। सो द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द प्रोग्राम रेस्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। एंड फॉर द प्रोग्रेस मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ CDP और पॉलिसी मेकिंग के लिए एट स्टेट लेवल पर देयर इज अ कमिटी और इस कमिटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं, राइट। अब चीफ मिनिस्टर इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ ऑल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स आर इट्स मेंबर, राइट। तो जो जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके साथ ही द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी इज अ डेवलपमेंट कमिश्नर, राइट, जो कि क्या करता है? हु कोऑर्डिनेट द प्रोग्रेस एंड पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो जो सेक्रेटरी जो होता है इस कमेटी का, राइट, तो इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर और ऑल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के जो है मेंबर होते हैं। इसके साथ ही जो सेक्रेटरी होता है इस कमेटी का वो होता है डेवलपमेंट कमिश्नर और जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज में क्या आता है? कोऑर्डिनेशन करता है। नाउ वी विल सी कम्युनिटी डेवलपमेंट इन पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम में जो CDP है वो किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरीके से उसका ऑपरेशन होता है वो समझते हैं। सबसे पहले सो एज यू नो व्हेन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, उसको रिकमेंड करने के लिए या एक तरीके से उसकी जांच के लिए एक कमेटी रिकमेंड की गई थी या एक कमेटी जो है फॉर्म हुई थी। उसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने ही जो है रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक 3 टायर जो है सिस्टम को रिकमेंड किया था। तो द बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड अ 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस। और इस 3 टायर सिस्टम में पंचायत राज होंगी, राइट। जैसे अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत होगी किस पर? ग्राम लेवल पर, राइट, लोअर लेवल पर और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होगी। वहीं ब्लॉक लेवल पर और मिडिल लेवल पर क्या होगी? पंचायत समिति होंगी। तो वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगी? जिला परिषद होगी। और इनके माध्यम से ही, राइट, इनके माध्यम से ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है वो इफेक्टिव होगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो उससे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इजीली क्या होगा? इम्प्लीमेंट हो पाएगा और इजीली उसकी जो प्रोसेस है वो मॉनिटरिंग हो पाएगी, राइट। अब जो पंचायती राज सिस्टम था जिसकी रिकमेंड किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसकी रिकमेंडेशन पर, राइट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता समिति, राइट,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंट इन 1958। तो राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत की इस्टेब्लिश की गई थी, परंतु ग्राम पंचायतों को या जो जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं थे, उनको कोई पावर्स नहीं दी गई थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं दिए गए थे। इस वजह से पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस थे वो हमारे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट में उतना अच्छा योगदान नहीं दे पाए। लेटर में जाके अगर हम देखें तो आफ्टर 10 ईयर्स अगर हम देखें तो अशोक मेहता समिति वाज एस्टेब्लिश्ड। तो अशोक मेहता समिति ने भी 2 टीयर पंचायती राज के लिए रिकमेंड किया था। फिर और भी समिति जो हैं हमारे देश में एस्टेब्लिश हुई थी। एट लास्ट अगर हम देखें तो जो LM लक्ष्मी सिंघवी कमेटी थी, इस समिति ने कहा था कि जब तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया जाएगा तब तक पंचायती राज जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो बेटर तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लक्ष्मी सिंघवी कमेटी थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जो पंचायती राज सिस्टम है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पंचायत की स्थापना की गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 था इसके अनुसार 3 टायर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके बाद में क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत एट ब्लॉक लेवल और मिडिल लेवल, फिर ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। ये पंचायतों की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ उनको जो है कुछ ड्यूटीज भी दी गई थी और एक तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था जिससे उनके जो इलेक्शन प्रोसेस हो जाएगी या उनके कौन कौन से ड्यूटीज होंगी वो पूरे के पूरे डिफाइन कर दिए गए थे। और फिर इन इंस्टीट्यूशन ने हमारे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जो सोशल डेवलपमेंट है या रूरल डेवलपमेंट है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब आप समझ पाएंगे कि जो CDP है उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे होता है। सो द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वो किसके पास में होता है, जिला परिषद के पास में होता है। तो जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लान। अब जो जिला परिषद होती है जिला परिषद में कौन कौन होते हैं तो जिला परिषद कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। इसके साथ ही इसमें जो ब्लॉक पंचायत इंक्लूडिंग जो है ब्लॉक पंचायत समिति होती हैं साथ ही साथ जो जिला परिषद है उसमें लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मिनिस्टर्स होते हैं तो कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद होती है उसमें जो जितने भी उस जिले के जितने भी MLA होते हैं या जो लोकसभा के मेंबर या MPs होते हैं, साथ ही साथ जो ब्लॉक पंचायत समिति होती है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इन सब से मिलकर क्या होती है, जिला परिषद तैयार होती है। और इसके बाद भी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज ऑफ जिला परिषद जिला परिषद क्या हो जाएगी, एक कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन बॉडी हो जाएगी। बट एक्चुअली जिला परिषद की जो पावर्स हैं उनका परफॉर्मेंस जो किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है वो किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है हेडेड होती है। तो एक तरीके से जो जिलाधीश या DM होता है वही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, और डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है या डिस्ट्रिक्ट DM जो होता है वही उस जिले में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या कोई भी प्लान है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसकी जगह पे जो डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर है वो फिर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वी विल सी ब्लॉक लेवल। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ब्लॉक क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए इनिशियली क्या था कि 300 विलेजेस, कंबाइनिंग 300 विलेजेस और इंक्लूडिंग
1300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो या तो 1300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे या 300 विलेजेस को कंबाइन करके एक डेवलपमेंट ब्लॉक को क्रिएट किया गया था। परंतु वर्तमान समय में 120 100 और 120 विलेजेस को मिलाकर या 1,20,000 जो पॉपुलेशन है उस पर एक रूरल जो है डेवलपमेंटल ब्लॉक जो है क्रिएट किया जाता है। तो वर्तमान समय में 120 गांवों को मिलाकर डेवलपमेंट ब्लॉक जो है बनाया गया है। और ये जो डेवलपमेंट ब्लॉक होता है, राइट, उसमें एक क्या होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, राइट। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है ये एक तरीके से ईच ब्लॉक में अपॉइंट किया जाता है, राइट। और इसके 8 जो होते हैं एक्सटेंशन क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो कि एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव, पंचायत, विलेज, इंडस्ट्री, सोशल एजुकेशन, वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर से क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, राइट। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो ब्लॉक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और साथ ही साथ 8 एक्सटेंशन क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, राइट। साथ ही साथ ब्लॉक लेवल पर जो भी पॉलिसीज हैं वो बनाई जाती हैं या इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत के द्वारा। तो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज रेस्ट विद द क्षेत्र पंचायत। और क्षेत्र पंचायत में कौन कौन आते हैं, सरपंच आता है, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत हो जाएगा, राइट, सम पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग वीमेन, फिर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी जो हैं ये सभी इस क्षेत्र पंचायत के होते हैं। क्षेत्र पंचायत ही पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है और फॉर्मुलेट करती है। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट जो है ऑफिसर होता है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। इस तरीके से ब्लॉक लेवल पर या डेवलपमेंटल जो ब्लॉक होता है इस लेवल पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर तीसरा हो जाएगा विलेज लेवल पर, राइट। तो विलेज लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन की और फॉर्मुलेशन की वो होती है ग्राम पंचायत पर, राइट। ग्राम पंचायत हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो ग्रामीण जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए जो बॉडी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो ग्राम पंचायत ही होती है, राइट। इसके साथ ही एक ग्राम सेवक, या हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि विलेज सर्वेंट, राइट, विलेज सर्वेंट और ग्राम सेवक इज आल्सो अपॉइंटेड, राइट, 10 गांवों को मिलाकर, राइट। सो over 10 villages, see a village servant is appointed over 10 villages। तो village servant है वो कि 10 villages पर जो है अपॉइंट किया जाता है और उसका काम क्या रहता है, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रूरल कम्युनिटी। देखिए रूरल कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको उसी एरिया का कोई व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है। सो 10 गांव पर जो रूरल विलेज सर्वेंट होता है या ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक अपॉइंट होता है और वो रूरल कम्युनिटी और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, राइट, उनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक के रूप में कार्य करता है, राइट। और इसके माध्यम से ही जो लिंक क्रिएट होती है और फिर जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, राइट। तो उसमें भी ये अपना क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ग्राम पंचायत की, राइट। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो विलेज सर्वेंट्स होते हैं और जो मिडवाइफ्स होती हैं और जो विलेज सेवक्स होते हैं, राइट, ये भी एक तरीके से जो ग्रामीण वेलफेयर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ ही साथ ये जो विलेज सर्वेंट होता है या ग्राम सेवक होता है, राइट, ग्राम सेवक जो है जितने भी ऑफिशियल्स रहते हैं उनको फेमिलराइज कराता है किसके साथ में, जो विलेजर्स होते हैं, विलेजर्स के साथ में, या विलेजर्स को फेमिलराइज मतलब एक तरीके से विलेजर्स और जो जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं उनको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है ताकि ऑफिसर्स जो हैं विलेजर्स की समस्याओं को अच्छे से समझ सकें। और साथ ही साथ ये विलेजर्स एवं ऑफिसर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बिठाता है, राइट। तो इस तरीके से जो विलेज सर्वेंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रूरल कम्युनिटी के बीच में एक लिंक होता है जो कि 10 गांव पे जो है अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही साथ
तो ये ग्राम हमने यहाँ पर जो है विलेज सर्वेंट के जो है रोल को देखा। साथ ही साथ जो ग्रामीण लेवल पर जो भी प्रोग्राम होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन या फॉर्मुलेशन के लिए जो ग्राम पंचायत होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय सरपंच। तो ओवरऑल ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सरपंच के थ्रू ही क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर विलेज लेवल पर भी जो है समझ लिया, राइट। सो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर जो है हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।